Hello students, this is Lal Chandra Yadav. Welcome to all in your SST class. Dear students, in the previous topic, we have read that on 26 January 1930, Pandit Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose had decided to celebrate the Purna Swaraj. But when they have started to celebrate the Purna Swaraj on 26 January 1930, the many peoples had not participated in these celebrations. The reason behind it that at that time the literacy level in India were not so high and the common people were unable to understand the benefits and the meaning of the Purna Swaraj. So they had not been participated in the movement. So there was the problems in front of the prominent nationalists such as Subhash Chandra Bose, Pandit Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, how they could unite the peoples. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग पिछले टॉपिक्स में ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिशर्स के जो डोमिनियन स्टेट्स का एक वैगू ऑफ़र था, जो बहकाने वाला ऑफ़र था, उसे ठुकरा दिया था और उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी और ये डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 को वो लोग इकट्ठा होंगे एंड दे विल टेक द प्लेज टू स्ट्रगल फॉर द पूर्ण स्वराज। और उन्होंने ये शपथ ली थी कि वे लोग पूर्ण स्वराज के लिए स्ट्रगल करेंगे एंड द स्ट्रगल विल कंटिन्यू until they could not be get the freedom। और जब तक वो फ्रीडम ना पा जाए तब तक वो स्ट्रगल उनको जारी रखना था। लेकिन उन्हें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाया। उसके पीछे रीज़न था कि उस समय लिटरेसी लेवल जो थी इंडिया में ज़्यादा हाई नहीं थी और लोग स्वराज की मीनिंग को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर स्वराज के आने से उनके जीवन में क्या फ़ायदे होंगे। और आसान भाषा में समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि उनमें उनको कोई डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं दिख रहा था। जैसे कि अगर हमको कोई ये कहे कि आप अगर इस मोमेंट में हमारा साथ देंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, आपको घर मिल जाएगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो हमको इसमें अपना डायरेक्ट लाभ दिखता है और फिर हम उस मोमेंट में या किसी भी क्रियाकलाप में हम भाग लेने लगते हैं। तो पूर्ण स्वराज में ऐसा लोगों को कुछ दिख नहीं रहा था कि इससे उनके जीवन में यानी व्यक्तिगत जीवन में डेली लाइफ में क्या चेंजेज आने वाले हैं। इसके लिए महात्मा गांधी ने और देश के अन्य अग्रणी नेताओं ने उस बिंदु को ढूंढने का प्रयास शुरू किया कि जिससे वो लोगों को एक कर सके। So we may say now Mahatma Gandhi had started to find out the things which could be unite the nation against the Britishers, and finally he find out a things which were related to the every peoples, and that was the salt. So our today's topic is the salt march and the civil disobedience movement. Means in this topic we are going to read why Mahatma Gandhi had started the salt march and what was the relations of the salt march with the civil disobedience movement. So dear students, carefully read this topic because this topic is very important and board ask the many questions from this topic. So read, this is a very easy topics and if you will be read carefully, you will be able to understand to the every concept of the topic. So with your rough and the pen, open your book and read. Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. If
the board asked the questions, Gandhi ji had find out the salt to unite the nations. What were the importance of the salt at that time and how they have decided the salt to unite the nations. We will find out all types of the questions answer in this topic. And actually I want to say that Gandhi ji had find out that if they will raise the abolition of the salt tax and the monopoly of manufacturing the salt of the Britishers, then they could unite the nation. प्यारे बच्चों, गांधी जी ने ये सोचा कि नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति के द्वारा यूज की जाती है। आप सभी जानते हैं कि हर घरों में नमक का यूज होता है और उस समय गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो नमक पर टैक्स ले रही थी, जो कि अच्छा नहीं था, क्योंकि नमक एक बेसिक चीज़ है और बेसिक चीज़ों पे टैक्स नहीं लिए जाते हैं क्योंकि उसे अमीर और गरीब सभी व्यक्ति यूज करते हैं। तो महात्मा गांधी ने ये डिमांड रखी कि ब्रिटिशर्स को ये जो सॉल्ट टैक्स है वो हटा लेना चाहिए। तो इसमें सबको बेनिफिट दिखने लगा कि हाँ ये सॉल्ट टैक्स हटना चाहिए। तो गांधी की इस डिमांड का सभी लोगों ने क्या किया, सपोर्ट किया और गांधी ने सॉल्ट मार्च निकाली, अर्थात एक ऐसी रैली निकाली जिसमें वो लोग ये मांग कर रहे थे कि जो सॉल्ट पर लगने वाला टैक्स है वो हटना चाहिए। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टू द टॉपिक विच आई एम सेइंग टू यू, जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसे आप समझ पा रहे होंगे। और दूसरा था कि उस समय केवल ब्रिटिशर्स ही नमक बना सकते थे। मोनोपोली मीन्स होता है सिंगल राइट। एट दैट टाइम ओनली द ब्रिटिशर्स कुड मैन्युफैक्चर द सॉल्ट, द इंडियन कुड नॉट बी मैन्युफैक्चर द सॉल्ट। मोनोपोली माने विशेषाधिकार, किसी एक का अधिकार। तो उस समय केवल ब्रिटिशर्स ही नमक बना सकते थे, इंडियन नहीं बना सकते थे। इसका भी गांधी ने विरोध किया कि इंडियन भी नमक बना सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक नमक ऐसी चीज़ उसने फाइंड आउट कर लिया, यानी गांधी जी ने नमक को फाइंड आउट किया क्योंकि वो जनरल इंटरेस्ट की चीज़ें थी। जनरल इंटरेस्ट मीन्स सबसे जुड़ी हुई चीज़ें थी, और जब कोई चीज़ सबसे जुड़ी होती है तो उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं अगर उनकी बेनिफिट्स की बातें होती हैं। जैसे कॉमन इंटरेस्ट की बात कहें, जैसे एजुकेशन सबको चाहिए, तो अगर हम एजुकेशन पे कोई अगर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए अगर हम कोई आंदोलन शुरू करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो सभी लोग उसका जनरली सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही नमक पर टैक्स तो कोई नहीं देना चाहता था, तो नमक पे जो टैक्स लिया जा रहा था क्योंकि बेसिक चीज़ें थी, तो उन्होंने गांधी का क्या किया, सपोर्ट किया, और इस तरह से गांधी ने क्या कर लिया, यूनाइट कर लिया। अब आप देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाई गांधी जी हैड डिसाइडेड द सॉल्ट एज ए इम्पॉर्टेंट सिंबल टू यूनाइट द nation. So you can write, because at that time the British government were taking the tax on the salt, and there was the monopoly of the Britishers on manufacturing the salt. So Gandhi ji had opposed to the law, and because it was the interest of the common people, so all the peoples have supported the Mahatma Gandhi. So you are able to understand. On 31st January 1930 he sent a letter to Viceroy Irwin. At that time the British Viceroy was Lord Irwin. उस समय लॉर्ड इरविन था, और गांधी ने क्या किया कि 31 जनवरी 1930 को एक लेटर लिखा इरविन को, जिसमें उनकी 11 डिमांड्स थी। उन्हीं 11 डिमांड में सॉल्ट भी एक उनकी क्या थी, डिमांड थी। यानी सॉल्ट पे लगने वाला जो
टैक्स था उसे हटाने की, और वो जो मोनोपोली थी मैन्युफैक्चरिंग की उसे हटाने की भी एक डिमांड थी। आपकी एनसीईआरटी में एकदम इजी वर्ड में लिखा हुआ है, सम ऑफ दीज वेयर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। सम ऑफ दीज वेयर मीन्स 11 मांग जो उन्होंने रखी थी उनमें से कुछ जो थी वो जनरल इंटरेस्ट से थी। जनरल इंटरेस्ट माने वो सभी लोगों के जीवन से जुड़ी हुई थी। जैसे कि सॉल्ट सभी लोगों से जुड़ी हुई थी। कुछ डिमांड स्पेसिफिक ग्रुप से थी। जैसे स्पेसिफिक ग्रुप, अगर कोई एजुकेशन की बात कर ले, फ़ी की बात करे तो स्टूडेंट से आ जाएगा, तो स्टूडेंट एक स्पेसिफिक ग्रुप है सोसाइटी का। अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, सीड्स की बात करें तो पीजेंट से आ जाएगा। पीजेंट क्या है? स्पेसिफिक ग्रुप है। तो जो एक कुछ हमारे बड़े सेक्शंस हैं, जिसे अगर हम डिवाइड करें अपने सोसाइटी को, तो हम ब्रॉडली रूप से 2 पार्टों में सोसाइटी को डिवाइड कर पाते हैं। जनरली अगर हम मैन्युफैक्चरिंग वर्ग में देखें तो एक तो हो जाता है आपका पीजेंट्स, किसान। आप जानते हैं कि इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो भारत में बहुत सारे किसान हैं। तो उन्होंने कुछ डिमांड किससे रिलेटेड रख दी? पीजेंट से रख दी, और कुछ उन्होंने इंडस्ट्रीज से रख दी, क्योंकि इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से गांधी ने क्या किया? ट्राई किया कि मैक्सिमम लोगों को वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े कर सके, ताकि ब्रिटिश डरे, और ब्रिटिश जो है अपनी जो उनकी रॉन्ग पॉलिसी थी, जो उनकी गलत पॉलिसी थी, जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडियन को, उन्हें वो वापस ले। So some of these were of general interest, other were specific demand of different class from industrialists to peasants। अभी मैंने आपको समझा दिया है, आप ये समझ गए होंगे। The idea was to make the demands wide ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign। campaign माने, campaign का मतलब रैली। अभी आपको समझा दिया हमने कि वो इसलिए कर रहे थे, यानी गांधी जी हैड पुट द 11 डिमांड्स, किस लिए रखा था उन्होंने? सो दैट दे कुड बी यूनाइट द मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश की जो गलत नीतियां थी, जो ब्रिटिश की एक प्रकार से भारतीयों के खिलाफ नीतियां बना रखा था उन्होंने, उससे वो लोग क्या कर सके? विरोध कर सके, और सारे इंडियन का वो सपोर्ट पा सके। द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वाज डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। अभी ये आपको हमने समझा दिया, अब हमको लगता है इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाई द रिच एंड द पुअर अलाइक। अभी आपको समझाया कि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो अमीर के द्वारा भी यूज की जाती है और गरीब के द्वारा भी। एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ फूड। आप जानते ही है कि नमक जो है हमारे भोजन का एक अभिन्न पार्ट है। अगर इफ़ वी विल नॉट बी यूज द सॉल्ट इन आवर फूड, देन द टेस्ट ऑफ आवर फूड विल नॉट बी गुड। हमारा टेस्ट अच्छा नहीं होगा, और हम मतलब आप तो जानते ही हैं कि अगर हम नमक का यूज ना करें तो भोजन कैसा लगेगा। और भी नमक की उपयोगिताएं हैं, आप साइंस में भी अच्छे से पढ़े होंगे इसको। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। एट दैट टाइम मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही थी सॉल्ट पे, और उसका जो मोनोपोली था उसी के अगेंस्ट में ये मूवमेंट गांधी ने स्टार्ट किया। महात्मा गांधी डिक्लेयर रिवील्ड द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल्स। रिवील्ड मतलब होता है कि एक प्रकार से ब्रिटिश जो शासन चल रहा था उसका सबसे दमनकारी और सबसे अन्यायपूर्ण कदम था। मीन्स गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट imposing the tax on salt and keeping the monopoly on manufacturing the salt was the most injusticeful step of the British government। इनका सबसे अन्यायपूर्ण कदम है, ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। अब आगे आप देखेंगे, महात्मा गांधी लेटर वाज इन ए वे एन अल्टीमेटम। यानी गांधी जी ने जो इरविन को पत्र लिखा, यानी 11 डिमांड जो उसमें रखी थी, गांधी जी ने ये कहा था कि इमीडिएटली they have accept these 11 demands, otherwise they will start the civil disobedience movement। गांधी ने कहा था कि अल्टीमेटम था, अल्टीमेटम माने चेतावनी थी, यानी गांधी लेटर वाज लाइक एन अल्टीमेटम फॉर द इरविन दैट इफ दे विल नॉट बी एक्सेप्ट दीज 11 डिमांड्स, गांधी जी विल स्टार्ट द civil disobedience movement, and they have given a deadline to accept the demand, and that was the 11th March।
गांधी ने कहा कि अगर 11 मार्च तक उनकी ये मांगे नहीं मानी गई, 11 मार्च मीन्स आप पीछे आगे पढ़ चुके हैं ना, कौन सा चल रहा है 1930, 31 जनवरी 1930 को उन्होंने लेटर भेजा। कहानी को रिलेट करते जाइएगा, 11 मार्च मतलब 2021 का 11 मार्च मत ले लीजिएगा। तो 1930 को उन्होंने भेजा था और 11 मार्च तक का उनको टाइम दिया इरविन को कि आप मेरी डिमांड को एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या कंपेन। बात एक ही है। इरविन वाज अनविलिंग टू निगोशिएट मीन्स गांधी इरविन वाज नॉट रेडी टू टॉक अबाउट दी डिमांड्स ऑफ महात्मा गांधी। इरविन जो था वो अपने घमंड में चूर था, वो सोच रहा था कि ऐसी डिमांड करके गांधी क्या कर लेगा, यूनाइट नहीं कर पाएगा, और उसने इसीलिए गांधी की इन 11 डिमांड्स को केयर नहीं किया और उस पर कोई भी बातचीत नहीं की, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तो आप तो गांधी को जी को जानते ही हैं, अब जिद्दी स्वभाव के थे और काफ़ी उनका जो एक प्रकार से उनकी संघर्ष करने की क्षमता जो है वो बहुत ही अद्भुत थी। ऐसी संघर्ष करने की क्षमता आप बहुत ही कम लोगों में देखेंगे कि एक अकेला व्यक्ति जिसने पूरे देश को यूनाइट किया, और यद्यपि उसमें बहुत से लोगों ने साथ दिया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं फादर ऑफ नेशन हम उन्हीं को कहते हैं। नेशन तभी बनता है जब देश के लोग क्या हो, यूनाइट हो। जब सब लोग अलग अलग सोचेंगे तो नेशन कैसा रहेगा। नेशन में पहले आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है। तो ये चीज़ें गांधी ने क्या किया कि अब जब उन्होंने 11 मार्च तक का वेट किया और 11 मार्च तक जब उनकी डिमांड नहीं मानी गई, तो महात्मा गांधी हैड स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers. Volunteers means होता है, volunteers means the persons who want to participate in the any movement or any activities by his wish. मतलब अपनी इच्छा से किसी चीज़ में भाग लेना, कोई फोर्स नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। वॉलंटियर्स की जो हिंदी होती है वो होती है स्वयंसेवी, यानी मोटिवेटेड फॉर सेल्फ सर्विस, मतलब स्वयं खुद से सेवा करना चाहें किसी चीज़ की। आपको कोई फोर्स नहीं है कि आप करिए। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं तो उसमें कुछ लोग जो होते हैं सर्व करते हैं, जो हमारे यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं तो उसमें कुछ लोग खुद ही अपने आप सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, उन्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं करता करने को। जैसा कि आप कोविड-19 में देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो हैं डोनेट्स कर रहे हैं, तो उनको कोई फोर्स थोड़ी ना कर रहा है गवर्नमेंट की, नहीं तुम डोनेट करो ज़बरदस्ती करो। तो ये मतलब होता है वॉलंटियर्स, स्वयंसेवी, और ट्रस्टेड थे उनके। ऐसा नहीं है कि पता चला ऐसे लोगों को लेके जाए आधे रास्ते से लौट आए तो फिर तो लोगों को क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएंगे। तो इस 78 लोगों को ही साथ लेकर के गांधी जी चले, क्योंकि वो ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे। अर्थात अगर जो एक बार डिसाइड कर लिए थे तो फिर वो जो है उस सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि घर से फ़ोन आ गया तो कोई कह दिया तबीयत ख़राब है तो लौट आएंगे, फिर तो लोग डिस्करेज हो जाएंगे, फिर मूवमेंट क्या होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स, जो उनका मार्च था, जो उनकी पैदल यात्रा थी वो कितनी थी, 240 मील से भी अधिक थी। 240 मील लोग पैदल चल जाते थे, और हम लोगों की आज हालत क्या है कि 1 किलोमीटर भी जाना होता है तो साइकिल बाइक लेकर के चलते हैं। आप लोग जानते हैं गांधी जी ने पूरे भारत को पैदल ही भ्रमण कर लिया था। कैसे व्यक्ति थे और कितनी अच्छी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वी कैन बी इमेजिन अबाउट इट। फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि गांधी जी का आश्रम कहाँ पे था, तो गांधी ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी, यानी शॉर्ट मार्च कहाँ से स्टार्ट किया, पूछ लिया जाएगा। व्हाट वाज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द शॉर्ट मार्च, देन योर आंसर विल बी द साबरमती आश्रम ऑफ महात्मा गांधी, विच इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम, टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। तो गुजरात के दांडी, यानी जो कि एक क्या था, कोस्टल टाउन था, यानी समुद्र के किनारे पे स्थित शहर था, कस्बा था, वहाँ जाना था, और जिसकी दूरी कितनी थी साबरमती आश्रम से 240 मील थी। द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स अ डे। 24 दिन लोगों पैदल चले, लगभग 10 मील वो लोग पर डे चलते थे। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेर एवर ही स्टॉप, जहाँ कहीं भी गांधी जी रात को स्टॉप लेते थे रुकने के लिए, रेस्ट लेने के लिए।
and they told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. तो गांधी जी को लोग सुनने आते थे, पॉपुलैरिटी गांधी की इतनी पीक पे थी कि लोग सुन लेते थे कि गांधी आए हुए हैं, तो लोग उनके पास आते थे, उनसे बातें करते थे। तो गांधी जी उनसे एक निवेदन करते थे। गांधी जी अर्ज मीन्स गांधी जी रिक्वेस्टेड टू दोज पीपल्स टू पीसफुल्ली अपोज द ब्रिटिश। वो कहते थे कि पीसफुल्ली अपोज करिए, आप लोग लड़ाई मत करिए। लोग आते थे बहुत गुस्से में रहते थे कि हम लोग ब्रिटिश को मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आप आदेश तो दीजिए, हम लोग लड़ के हरा देंगे। तो गांधी उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप एग्रेसिव मत होइए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही ब्रिटिशर्स को डिफीट कर ले जाएंगे। एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मीन्ड बाय स्वराज, तो आपको बता चुके हैं। ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप मतलब इसको आप लोग जो है ये देखिए, ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी। दांडी वो 6 अप्रैल को पहुँचे हैं और उन्होंने ही सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, बाय मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट विद बॉइलिंग सी वाटर दे हैव सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ। वायलेटेड द लॉ का मतलब होता है कानून को तोड़ना, यानी जो उनका एक कानून था कि कोई नमक बना नहीं सकता है अंग्रेज़ों के अलावा, उसको उन्होंने क्या कर दिया, 6 अप्रैल 1930 को तोड़ दिया। और यही जो इवेंट थी, जो यही घटना थी, वो क्या थी, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आप समझ गए कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी साबरमती से चल कर के दांडी पहुँचे, और वहाँ पर पहुँचने में इनको कितने दिन लग गए, 24 दिन लग गए। और जब वहाँ पर वो पहुँचे तो उन्होंने समुद्र के पानी को गर्म किया, और गर्म करके क्या बनाया, बॉयल किया, यानी गर्म करने मतलब उबाल करके, बॉयलिंग कर करके, और क्या किया, सॉल्ट बना दिया। और सॉल्ट बनाना यानी ये जो था वो अंग्रेज़ों के कानून के खिलाफ था। तो जैसा कि आपका टॉपिक ही है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल माने जैसे सरकार, एक प्रकार से प्रशासन, तो डिसओबीडियंस माने आज्ञा ना मानना, यानी अब प्रशासन की आज्ञा का उन्होंने क्या कर दिया था, उल्लंघन कर दिया था। वायलेटेड द लॉ ऑफ द सिविल से वायलेटेड द लॉ ऑफ द ब्रिटिशर्स, सो वी मे से इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब ये यही घटना जो है वो क्या बन गई, क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि मार्क द इवेंट विच वाज द बिगिनिंग ऑफ द civil disobedience movements, then you have to write the answers. On 6 April at the coast of Dandi, Gandhi ji have manufactured the salt by boiling sea waters, and this event was the beginning of the civil disobedience movement because it was against the order or the law of the British government. So dear students, I think you are able to understand to the every line and the every concept of the chapter. This is very interesting chapter, हमारे देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो आपको ये चैप्टर समझ में आना चाहिए। यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी पूछा जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सो यू हैव टू राइट द आंसर। पहला तो आपको कॉमन पता है, इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द गांधी जी हैव रिक्वेस्टेड द इंडियन पीपल्स टू नॉन कोऑपरेट द ब्रिटिशर्स, बट यानी अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाले कॉलम में आपको लिखना है, इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी हैव रिक्वेस्टेड द इंडियन पीपल्स not obey to the law or the order of the British government which was against the Indians or against the justice, and they have not to cooperate the Britishers, means including non-cooperations with the Britishers. Now they have not to obey the law or the order of the British government which was against injustice. अब इसमें क्या करना था, ये तो दोनों हो गया आपका ना, एक तो हो गया डिफरेंशिएट पॉइंट, दूसरा हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लिमिटेड टू द टाउन्स बट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज आल्सो स्प्रेड इनटू द विलेजेज। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो कहाँ पे फैला हुआ था, टाउन्स तक लिमिटेड था,
लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टाउन्स के साथ साथ गाँव में भी हुआ। वन ऑफ द वेरी यूनिक फीचर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड this is the women had been participated in the civil disobedience movement, but in the non cooperation movement they had not been participated। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में औरतों ने भाग नहीं लिया था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में औरतों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ठीक, तो ये आपका हो गया। और एक तो इसमें भी है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में मुस्लिम ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम ने पार्टिसिपेट किया था। अब कौन किस लिए पार्टिसिपेट नहीं किया था ये आप आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इस क्वेश्चन के आंसर में इतना पर्याप्त है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, आप ये सारे अगर पॉइंट आप अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब जो हमारा आगे ही है इसी में, विद द ब्रिटिश एज दे हैड डन इन 1921-22 बट आल्सो ए ब्रेक colonial law, thousands in different part of the country broke the salt law। यानी कहने का मतलब होता है when Gandhi ji had break the salt law, then into the different part of the country and different part of India the many people have broke the salt law। कैसे salt law उन्होंने किया? they had started to manufacture the salt and demonstrated in front of government salt factory। demonstrated माने प्रदर्शन किया, यानी उन्होंने गवर्नमेंट की जो सॉल्ट फैक्ट्रियाँ थी उन्हीं के सामने नमक बना करके, अपने नमक को बेच करके, नमक को यूज करके उनका विरोध किया कि नाउ वी आर नॉट ओबेइंग योर ऑर्डर्स, नाउ वी आर नॉट फोर्स टू परचेज द सॉल्ट ऑन द प्राइस विच इज इशूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट तो ऐसे इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आगे और भी बता रहे हैं कैसे कि आज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ वाज बाइकॉटेड। अब जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा, लोगों ने फॉरेन क्लॉथ को भी बाइकआउट किया, यानी विदेशी कपड़ों को पहनने से, खरीदने से मना कर दिया। लिक्विड शॉप्स वेयर पिकेटेड, जो शराब की दुकानें थी उन्हें बंद करवा दिया गया। ये सब क्यों कर रहे थे? अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाई द इंडियन पीपल्स वेयर बाइकआउटिंग द फॉरेन क्लॉथ एंड दे हैड फोर्स टू क्लोज द लिक्विड शॉप्स, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि क्यों ऐसा कर रहे थे, एक्चुअली दे वांटेड टू हर्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इकोनॉमिकली। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाना चाहते थे। जो ब्रिटिश कंपनी थी, यानी उसका तो जो फर्स्ट मोटिव था वो ट्रेडिंग ही था इंडिया में, और जो उसकी कमाई का जरिया था वो उसका कपड़ों का व्यापार था, शराब का व्यापार था। तो वो लोग ये सब बंद कर करके उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इकोनॉमिकली हर्ट करना चाहते थे। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रिवेन्यूज एंड चौकीदारी टैक्सेस, जो पीजेंट्स थे उन्होंने रिवेन्यू और चौकीदार टैक्स देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, जो गांव के अधिकारी उन्होंने नियुक्त किए थे, जो उन्होंने बना रखे थे गांव के। एक्चुअली द ब्रिटिश वेयर रूलिंग ओवर इंडिया बाय हिज डिवाइडिंग पॉलिसी। वो भारत के लोगों को ही भारत से अलग करके भारत के लोगों के खिलाफ मतभेद पैदा करके शासन करना चाहते थे। तो उन लोगों ने भी इस चीज़ को अब समझ लिया था और उन्होंने उस पद से क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। एंड मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, और बहुत सारे लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को भी क्या कर दिया, वायलेटेड कर दिया, यानी ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। फॉरेस्ट लॉ क्या था? फॉरेस्ट लॉ मीन्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव रिजर्व द सम फॉरेस्ट विच वेयर यूजफुल फॉर देम, उनको उन्होंने रिजर्व रख लिया था। एंड दे वेयर नॉट अलाउड द इंडियन पीपल्स टू इंटर इन दैट फॉरेस्ट, और उन्होंने इंडियन पीपल को वहाँ पर क्या कर दिया था, प्रवेश करने से मना कर दिया था। तो उस कानून को भी लोगों ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अभी इसके बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे। गोइंग इन टू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल्स, अब वो लोग क्या करे गए, रिजर्व फॉरेस्ट में जाने लगे और वहाँ पे क्या करने के लिए, कलेक्ट, जो लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे और जो अपने पशुओं को चराने के लिए। ग्रेज कैटल्स, कैटल का मतलब एनिमल्स, जो उनके पशु थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो मोस्टली फॉरेस्ट में ही रहा करते थे, और उनकी जो लिविंग्स थी, जो जीविका थी, वो किस पे डिपेंड थी, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे ही डिपेंड थी। जैसे कि वो लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे, फिर टाउन्स में ले जाके उनको बेचते थे, फिर फ्रूट्स वगैरह यूज करते थे, अपने पशुओं को वहीं पे चराते थे। तो उनकी अर्निंग का जरिया वही था। लेकिन
जो ये फॉरेस्ट लॉ बना दिया था अंग्रेज़ों ने, इसकी वजह से उनकी अर्निंग क्या हो रही थी, इफ़ेक्टेड हो रही थी। तो इस तरीके से जितनी भी अर्निंग थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई। जैसे कि अब सॉल्ट भी नहीं बिक रहा है इनका, दूसरा इनका फॉरेन क्लॉथ्स जो है वो क्या किए जा रहे हैं, बाइकआउट किए जा रहे हैं, शराब की दुकानें जो है वो बंद की जा रही हैं और लोग टैक्स नहीं दे रहे, रिवेन्यू दे नहीं दे रहे हैं। तो उनकी अर्निंग क्या हो गई, ख़त्म होने के कगार पे आ गई, कम होने लगी। तो इससे वो लोग क्या हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। वो तो सोचेंगे कि अब ये जो उन्होंने जो उनका एम्पायर है इंडिया में वो ख़त्म हो जाएगा। तो आगे वही लिखा हुआ है कि वरीड बाय द डेवलपमेंट्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। तो उन्होंने सोचा कि अब ये जो डेवलपमेंट्स है, यानी अगर आंदोलन ऐसे ही बढ़ता रहा तो द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया विल बी कोलैप्स, ख़त्म हो जाएगा। सो दे बिगन टू अरेस्ट द कांग्रेस लीडर वन बाय वन, एक एक को करके उन्होंने क्या किया, अरेस्ट करना शुरू कर दिया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस, और इससे उनके बहुत सारे क्लैशेस हुए, इंडियन के साथ क्या हुए, क्लैश हुए, लड़ाई झगड़े हुए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन अब्दुल गफ्फार खान पूछ लेगा कि हु वाज अब्दुल गफ्फार खान, देन यू हैव टू राइट द आंसर एट डिवोट डिस्पिल ऑफ महात्मा गांधी। डिस्पिल मतलब शिष्य होता है, यहाँ पे हम दोस्त से भी ले सकते हैं। गांधी के एक अच्छे शिष्य थे, अच्छे दोस्त थे खान अब्दुल गफ्फार खान। वो कहाँ पे अरेस्ट किए गए, पेशावर में। वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। क्राउड्स डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर फेसिंग आर्मर्ड कार्स एंड द पुलिस फायरिंग। तो जब उनको लोगों ने अरेस्ट कर लिया, पेशावर जब जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान में है, एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यानी मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। तो उनके लीडर कौन थे, उनके लीडर थे अब्दुल गफ्फार खान। जब उनको अरेस्ट कर लिया, वो पॉपुलर लीडर थे, तो सारे मुस्लिम एंग्री हो गए और मुस्लिम्स हिंदू भी इसमें शामिल थे। तो वो लोगों ने क्या कर दिया कि वो गलियों में आकर के वो पुलिस का सामना करने लगे। पुलिस उनके ऊपर गोलियां चला रही थी, बट दे हैड नो फियर टू द डेथ, लेकिन उनको मृत्यु का कोई डर नहीं था और वो उनका सामना कर रहे थे। आर्मर्ड कार मीन्स होता है, आर्मर्ड कार माने शस्त्रों से सुसज्जित, जो शस्त्र जिसमें भरे हों, मतलब हथियारों से लैस जो कार हो। और आर्मर्ड माने सुरक्षा भी होती है। तो उसमें जो उनके एक प्रकार से जो लोग ये लोग ईंट पत्थरों से वार करते थे, तो वो उसके ऊपर उन लोगों ने जाली वगैरह नुमा लगा रखा होगा, कोई जैसे हेलमेट टाइप में नहीं होता। आप कहते हैं हेलमेट हमारी सुरक्षा कवच होता है, तो ऐसे भी तो आर्मर्ड का मतलब मेन मतलब होता है शस्त्रों से सुसज्जित कारों का वो सामना कर रहे थे। इनके पास तो मॉडर्न वेपन्स थे नहीं, बंदूक बम ये सब तो थे नहीं। ये ज़्यादातर जो लोग वार कर रहे थे, ये लोग अपना जो आपके मतलब विल्जर्स वेपन्स हैं, जैसे कि लाठी डंडे, इन सब से वार कर रहे थे। मेनी वेयर किल्ड, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और एक महीने के बाद व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, एक महीने के बाद गांधी जी को भी लोगों ने अरेस्ट कर लिया। कहाँ से अरेस्ट किया, सोलापुर से। सोलापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो फिर इंडियन पीपल्स ज़्यादा एंग्री हो गए और उन्होंने दे बिगन टू अटैक ऑन द ब्रिटिश सिंबल्स लाइक पुलिस पोस्ट, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस। इन सब जगहों पर उन्होंने क्या कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिप्रेसिव स्टेप लिया, यानी इस आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। इवन दे हैव बीटन द वुमेन्स एंड द चिल्ड्रेन आल्सो। सो गांधी जी हैव सॉ दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग टूवर्ड्स वायलेंस। उनको लगने लगा कि ये आंदोलन किस तरफ बढ़ रहा है, वायलेंस की तरफ बढ़ रहा है। तो उन्होंने आंदोलन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। इन सच ए सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड इंटर्ड इनटू अ फाइट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। पीछे आपने पढ़ा था कि जो साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था, लॉर्ड इरविन ने गांधी को एक ऑफ़र दिया था टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, टू क्या करने के लिए, फाइंड आउट द प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए कि जो ये भारत के लोग विरोध कर रहे हैं, कैसा चेंजिंग किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो शासन करने का उनका तरीका है, जो रूल है। तो गांधी जी उसमें रेडी हो गए कि अब बात करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई महात्मा गांधी हैव डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देन योर आंसर विल बी बिकॉज गांधी जी हैव नोटिस दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंस। तो आपका आंसर होगा कि गांधी जी ने क्योंकि ये नोटिस किया कि मूवमेंट किस तरफ बढ़ रहा था, वायलेंस की तरफ बढ़ रहा था। और गांधी ने डिसाइड कर लिया कि अब वो क्या करेंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे।
गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी ने ये वादा कर लिया और इरविन ने क्या कर दिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी जिसको उन्होंने कैद कर रखा था उनको छोड़ दिया। अब इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। गांधी जी जो है कॉन्फ्रेंस का मतलब मीटिंग के लिए यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए कहाँ चले गए, लंदन चले गए। और अंग्रेज़ों की ये नीति थी कि गांधी को किसी तरीके से इंडिया से एक बार हटाया जाए तो फिर जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो ये मोमेंट है, जो इनका एक आंदोलन चल रहा है, उसे दबाया जा सकता है। पर द निगोशिएशन ब्रोक डाउन। निगोशिएशंस मीन्स होता है द पॉलिसीज, द लॉ which were Britishers were imposing on the Indians, Gandhi ji had not accepted and he returned to India with a great disappointment। और भारत में वो बड़ी निराशा के साथ वापस लौट आए। और जब वो भारत में आए बैक इन इंडिया, ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। तो उन्होंने देखा कि तो अंग्रेज जो है वो लोगों को जो आंदोलन है उसे दबाने का एक पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। यानी दे हैव सॉ नोटिस्ड दैट द ब्रिटिशर्स वेयर ट्राइंग टू रिप्रेस्ड द मोमेंट विच वाज स्टूड अगेंस्ट देम। जो उनके खिलाफ उठे हुए आंदोलन थे उन्हें वो लोग दबाने का क्या कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वेयर बोथ इन जेल। उन दोनों को क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि जब उन्होंने ये अपोज किया होगा कि मूवमेंट रिप्रेस करने का तो उनको जेल में डाल दिया गया था। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस जो 1885 में फॉर्म हुई थी यानी कांग्रेस पार्टी, उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये क्या है, इलीगल है, ये कोई पार्टी नहीं है। एंड सीरीज ऑफ मेजर हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग। और बहुत सारे कदम उन्होंने उठाए कि कोई अब मीटिंग वगैरह नहीं कर सकता है, कोई इकट्ठा नहीं हो सकता है। सो गांधी जी वंस अगेन स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बट दिस टाइम the movement was not got the success as he got in the first time, because at that time the peoples were not supported the Gandhi ji because their demands had not been fulfilled। क्योंकि उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं की गई थी। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि who had been participated in the civil disobedience movement and who had not been participated। यानी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मोमेंट विच वी विल कवर इनटू द नेक्स्ट क्लास। बहुत आसान टॉपिक है बच्चों, आप सारे लोग पढ़िए, टेक्स्ट बुक को पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे से आप समझ पाएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग टू द एनी टॉपिक्स यू कैन आस्क मी थ्रू टेक्स्ट मैसेज। आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।